Good morning, students. This is Vinita Singh from St. Xavier School, Nalia. And today we are going to discuss figure of speech part 2. As I explained in my previous video, what is figure of speech? Figure of speech is in a figurative language used to draw a picture mentally which convey the message very quickly and effectively. In my previous video, I covered the 7 types of figure of speech: simile, metaphor, personification, hyperbole, apostrophe, oxymoron, and onomatopoeia. And in this video, I'm going to cover repetition, alliteration, synecdoche, metonymy, climax, anticlimax, antithesis, exclamation, euphemism, litotes, interrogation, transfer epithet, and irony. So let's begin it. Repetition. A repetition is a figure of speech where a word or a group of words repeated. It is used to create a rhythm and bring attention to an idea. Example, the president said, work, work, and work are the keys of success. So, here you can see that the word work is repeated thrice to bring the attention to the importance of the work to gain the success. Next, alliteration. Alliteration is the repetition of the beginning consonant sounds, or we can say that it is dependent on the beginning sound and not the beginning letter. Okay, so 6 silly swans went swimming in the sea. So it is important to note that not the every word in the sentence has to begin with the same letter in order for it to be considered alliteration. In this example, you can see that there is an 8 word, and out of 8 only 5 words are started from the S. So here the starting beginning of the consonant sound repetitions इसमें होते हैं बार बार. consonant sounds जो हैं वो अगर बार बार starting में repeat होगा तो वहां पे क्या होगा, alliteration figure of speech used होगा. Next, synecdoche. Synecdoche means a part is used to designate the whole or the whole is designate to a part. यानी कि एक कोई भी एक part या तो पूरे किसी चीज को थिंग को रिप्रेजेंट करेगा या फिर पूरी थिंग जो है वो किसी एक पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा. जैसे कि एग्जांपल है, गिव अस द डे आवर डेली ब्रेड. इन सेकेंड एग्जांपल, इंग्लैंड. सो इंग्लैंड इज एन होल. ठीक है, इसको अगर हम लोग होल मान रहे हैं, यहाँ पे एक होल कंट्री है ये इंग्लैंड. इंग्लैंड won the first test match against Australia. So England means the English cricket team. Okay, so here the English cricket team won the first test match. But what we said that England, हम लोग यूजुअली क्या बोलेंगे, इंग्लैंड ने फर्स्ट टेस्ट मैच जीत लिया ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट. ओके, हम लोग कभी भी ये नहीं बोलेंगे इंग्लिश क्रिकेट टीम ने जीत लिया. ठीक है, तो यहाँ पे सिनेक्डॉग ऐसे यूज होता है. और अगर नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, 50 सेल्स एंटर द हार्बर. तो सेल्स जो होते हैं वो पार्ट ऑफ द शिप होता है. ठीक है, एंड इट इज यूज टू रिप्रेजेंट द होल शिप. ओके, सो हियर 50 सेल्स मीन्स हो जाएगा 50 ships. Next is metonymy. Metonymy is a figure of speech in which one object is used to represent or to recall another which it closely suggests. Or in other words, we can say that one object is being replaced by the another object which is closely linked with it. Example जैसा है, have you read Shakespeare? तो Shakespeare is a great writer. Okay, and here it is used for its literary work. Okay, for his literary work he is used here. Have you read Shakespeare का मतलब हो जाएगा कि क्या आपने उनकी लिखी हुई किताबें पढ़ी हैं. तो हमने यहाँ पे बुक्स का नाम ना लेके हमने क्या लिखा है, have you read Shakespeare. तो यहाँ कौन सा figure of speech यूज हो गया है, metonymy. The crown, next example, the crown for the king. Crown for the king, here king is replaced by the word crown. Next, climax. Climax is a figure of speech in which the intensity of the thoughts or the intensity of the emotions are gradually decreased in each successive group of word or the phrases. Means इसमें आपके thoughts से emotions जो होते हैं वो धीरे धीरे क्या होते हैं, successive group of words, मतलब आगे की तरफ वो बढ़ते रहते हैं, increase होते रहते हैं छोटे से बड़े की तरफ. जैसे कि example में दिया है, she dreamt of having a maid, a car and a house. उसने ड्रीम देखा क्या, कि उसके पास एक मेड है, मेड के बाद उसके पास एक कार आई, कार के बाद उसमें क्या हुआ, उसके पास एक हाउस हुआ. एंटी क्लाइमेक्स इज
क्लाइमेक्स इज द अपोजिट ऑफ द क्लाइमेक्स. ओके, एंटी क्लाइमेक्स जो होता है वो क्लाइमेक्स का अपोजिट होता है. एंड इसमें क्या होता है, एक सडन डिसेंट होता है फ्रॉम हायर टू द लोअर. ये एकदम डिक्रीज लेवल में इसके वर्ड्स या फ्रेजेस जाते हैं. और इट इज चीफली यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ सटायर और द रिडिकुल. एग्जाम्पल, ही लॉस्ट हिज फैमिली, हिज कार एंड हिज सेल फोन. मतलब इंसान के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, सबसे बड़ा फैमिली होता है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला, ही लॉस्ट हिज फैमिली, उसने अपनी फैमिली छोड़ उसके लॉस्ट हो गई है. उसके बाद में हिज कार, उसकी कार भी चली गई है. एंड हिज सेल फोन, जो सबसे छोटा था, यानी बड़े से छोटा इसमें आ रहा है. इट मीन्स ये क्या है, क्लाइमेक्स का अपोजिट है. नेक्स्ट इज एंटीथेसिस. एंटीथेसिस is a figure of speech in which a striking opposite or the contrast of the word or the sentiment is made in the same sentence. It is employed to secure the emphasis, or in other word, if we said that antithesis is a figure of speech in which opposite ideas are put together in a sentence to achieve a contrasting effect. Contrasting effect देखने के लिए क्या होता है, दो opposite और कॉन्ट्रास्ट जो होते हैं आइडियाज, वो सेम सेंटेंस में आपको मिल जाएंगे. जैसे कि स्पीच इज सिल्वर बट साइलेंस इज गोल्डन, लव एंड हेट, गुड एंड एविल, पीस एंड वॉर, ये सब आपको क्या हो जाएगा, ऐसे अपोजिट वर्ड्स जो हैं आपको एक ही सेंटेंस में देखने को मिल जाएंगे. तो वहां पे कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होगी, एंटीथेसिस. Next one is litords. In litords, an affirmative is conveyed by the negative of the opposite. Opposite के negative में बोला जाता है, and the effect being to suggest a strong expression by means of a weaker, and it is the opposite of the hyperbole. Hyperbole का opposite है. Hyperbole मैं आपको पहले से explain कर चुकी हूँ previous वीडियो में. एग्जाम्पल, द मैन इज नो फूल. यहाँ पे अगर वो चाहता नॉर्मली बोल सकते हैं क्या, द मैन इज वेरी क्लेवर, बट हियर वर्ड्स आर यूज, द मैन इज नो फूल. नो फूल मीन्स वो बहुत ज्यादा क्लेवर है. ओके, यहाँ पे नो वर्ड यूज हुआ है. तो आपको किसी भी सेंटेंस में अगर नो, नेवर ऐसे वर्ड्स दिखाई देते हैं और उसका अपोजिट नो फूल, मतलब क्या है, वो वेरी क्लेवर है. ओके, तो नेगेटिव वर्ड भी यूज हुआ है और उसमें अपोजिट भी यूज हुआ है. तो इसीलिए यहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच आएगा, लिटॉर्ड्स. तो लिटॉर्ड्स का अगर एक और एग्जांपल देखें, देयर इज नॉट एनीथिंग आई वांट इट व्हेन आई एम हंग्री. यहाँ पे कुछ भी नहीं था, एंड आई वांट इट, मैंने नहीं खाया, व्हेन आई एम हंग्री, जब मैं भूखा था. तो ट्रांसलेशन अगर इसका देखें, आई विल ईट एनीथिंग व्हेन आई एम हंग्री. इसका मतलब ये है कि मैं कुछ भी खा सकता हूँ जब मैं हंग्री होता हूँ. ठीक है. नेक्स्ट, एक्सक्लेमेशन. एक्सक्लेमेशन जैसे कि आप लोग को पता ही है, हमेशा एंड होता है कोई भी सेंटेंस जब एक्सक्लेमेटरी मार्क से. एंड एक्सक्लेमेटरी फॉर्म इज यूज्ड टू ड्रॉ द ग्रेटर अटेंशन टू अ पॉइंट देन अ मेयर बाइल्ड और एन अ प्लेन स्टेटमेंट ऑफ इट कुड डू. कोई भी प्लेन स्टेटमेंट अगर दिया हुआ होता है, उसके अंदर एक्स्ट्रा इफेक्ट डालने के लिए या फिर ग्रेटर अटेंशन डालने के लिए हम लोग कौन सा फॉर्म ऑफ फिगर ऑफ स्पीच यूज करते हैं, एक्सक्लेमेशन. और ये हमेशा एंड होता है एक्सक्लेमेटरी मार्क से. जैसे एग्जांपल, हाउ स्वीट द मूनलाइट ऑन अपॉन दिस बैंक. नेक्स्ट, यूफेमिज्म. यूफेमिज्म consist in the description of a disagreeable thing by an agreeable name. मतलब ऐसी चीज जो कि disagreeable होती है, जो नॉर्मली कोई भी इंसान जिसको एग्री नहीं करेगा, उसको एग्रीबल फॉर्म में आपने लिखा है. जैसे यू आर टेलिंग मी अ फेरी टेल. फेरी टेल मतलब क्या, तुम मुझे कुछ कहानियां सुना रहे हो. इट मीन्स क्या हो गया कि वो सामने वाला इंसान क्या बोल रहा है, झूठ बोल रहा है. जैसे कि आप लोग होमवर्क करके नहीं लाते हो, तो तुम लोग इतने सारे एक्सक्यूजेस हम लोग टीचर्स को बोलते हो. ठीक है, तो उस टाइम पे अगर आपको टीचर्स बोले, आपको ये बोलने के बजाय कि तुम झूठ बोल रहे हो, तो अगर आपको वो बोले यू आर टेलिंग मी अ फेरी टेल, देन he or she using the euphemism figure of speech. और इधर देख रहे हो आप डायग्राम में, जैसा पिक्चर में, इस इंसान के हाथ में जो पेपर है उस पर लिखा है यू आर फायर्ड. फायर्ड का मतलब होता है तुम्हें नौकरी से निकाल दिया गया है, तुम्हें निकाल दिया गया है. ठीक है, तो इसने अपनी वाइफ से ये लेटर देखने के बाद कैसे इंट्रोड्यूस किया, हंसते हुए बोलता है, गुड न्यूज डियर, आई एम गोइंग टू बी स्पेंडिंग मोर टाइम विद द फैमिली. मैं अपनी फैमिली के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करने वाला हूँ, ये तुम्हारे लिए गुड न्यूज है. ठीक है, तो ये डिसएग्रीबल थिंग्स हैं जिनको एग्रीबल नेम देके उसको क्या किया गया है, डिस्क्राइब किया गया है. ठीक है. नेक्स्ट इज इंटेरोगेशन. इंटेरोगेशन मीन्स, इंटेरोगेशन नेम सुनते ही आपके दिमाग में क्वेश्चन मार्क आ जाता है, क्योंकि क्वेश्चन मार्क हमें एंड में दिख जाता है. ठीक है, इसमें इंटेरोगेशन इज द आस्किंग ऑफ क्वेश्चन. ठीक है, जब भी हम लोग किसी से कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो हम लोग इंटेरोगेशन का यूज करते हैं. ठीक है, बट
in this figure of speech, if we are asking any questions, that is not for the sake of getting an answer, but to put and point out more effectively अपने points को reader सामने, speaker के सामने या reader के सामने more effectively उसको represent करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, question mark को questions को पूछते हैं, लेकिन उसका आंसर हमें नहीं चाहिए होता है. जैसे एग्जांपल है, आर यू क्रेजी, कैन यू इमेजिन दैट. तो क्या आप इसके आंसर आपको चाहिए होंगे? I think no. If you poison us, do we not die? Aren't you ashamed of yourself? Nobody want to get these types of questions answers. Transferred epithet. So what is epithet? Epithet is a word or a phrase that describe a person or thing. एपिथेट क्या होता है? एक वर्ड या फ्रेज होता है जो कि पर्सन या थिंग को डिस्क्राइब करता है. सो इन दिस फिगर ऑफ स्पीच, एपिथेट जो है वो इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम इट्स प्रॉपर वर्ड टू द अनदर दैट इज क्लोजली एसोसिएटेड विद इट इन अ सेंटेंस. जो कि क्लोजली एसोसिएटेड होता है सेंटेंस में, उससे क्या हो जाता है? ट्रांसफर हो जाता है. ठीक है, समझ में आया? कोई भी एपिथेट मीन्स कोई भी वर्ड या फ्रेज जो पर्सन को या थिंग को डिस्क्राइब करता है, वो टोटली ट्रांसफर हो जाता है एक प्रॉपर वर्ड से, उसके क्लोजली एसोसिएटेड वर्ड से in the sentence. जैसे dreamless sleep, merry hours, unbreakfasted morning, drunken tag. Okay, and in this picture also one girl said to the another one that I admit it was a fun day. So here the girls experience very fun, not the day. Okay, so it's used as in a transferred epithet figure of speech. Our last for this session is irony. Irony is a figure of speech in which one thing is said when the opposite is meant. एक चीज बोली जाती है उस टाइम पे जब आपका मीनिंग कुछ और होता है. जैसे कि एग्जाम्पल, how good of you to refuse to help us. तुम कितने अच्छे इंसान हो कि तुमने मेरी हेल्प करने से, हमारी हेल्प करने से मना कर दिया. तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो एक चीज बोलना चाहते हैं लेकिन उसके मतलब क्या होता है? अपोजिट होता है. तो वहां पे इरॉनी फिगर ऑफ स्पीच यूज होता है. ओके, so thank you so much. If you like my video, please share and subscribe my channel Vinita Shekhawat, and please write all the figure of speech in your notebook with the definitions and the examples, and try to make five examples of this figure of speech. Thank you so much.